locus and straight line. Locus is done. Now we're starting with straight line. देखो स्ट्रेट लाइन में जो पहला एक्सरसाइज में पढ़ना है सबसे पहले स्लोप के बारे में. The first thing you have to study in straight line is the slope of a line. Slope of a line. देखो स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे मैं आई एम गिविंग यू टू फॉर्मूले, टोटल तीन है बट फिलहाल अभी दो और एक बाद में सिखाऊंगा. Whenever the question will come based on that third formula. The first formula is, this is my line having 2 points A and B. A is having coordinate x1 comma y1. B is having coordinate x2 comma y2. And suppose we want to find the slope of a line, which we represent as m. The formula is y2 minus y1, x2 minus x1. This is the first formula. Second, if we have an coordinate axis, this is my x-axis and this is my y-axis. This time, again, I want to find the slope of a line, but this time line is making some angle with axis. This is my line L, and this line is making some angle with axis. Let that angle is theta. तो यहाँ पे slope of a line का second formula है, which is m, and this is tan of theta, or it is tan of theta. यहाँ पे slope of line का formula है y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is my first formula of slope, and this is my second formula of slope, tan theta. बट एक्चुअली सिलेबस में ट्रिगो है नहीं 11th स्टैंडर्ड में, तो tan की सब ने कुछ वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओनली tan का, साइन कॉस नहीं. एंगल रहेगा 0, 30, 45, 60 एंड 90. tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3 and tan 90 is not different. So only tan की values from 0 to 90 you must know. ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में बस इतना कंसेप्ट है, स्लोप ऑफ अ लाइन. और एक और कंसेप्ट है, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल and perpendicular, then what is the relation between the slope. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर पैरेलल लाइन, एंड दूसरा फॉर परपेंडिकुलर लाइन. If suppose two lines are parallel and if two lines are perpendicular, what is the relation between their slope? This is L1, L2, L1, L2. Suppose first line का slope M1 है, second line का slope M2 है. Here also M1 and M2. If the lines are parallel, if the lines are parallel, slopes are equal. Lines are parallel, slopes are equal. यहाँ पे रिलेशन मिलेगा M1 is equal to M2. If lines are parallel, slopes are equal. And for perpendicular में slope का प्रोडक्ट मतलब M1 into M2 is equal to -1. In perpendicular, M1 into M2 is equal to -1. So we have this two relation. पैरेलल में स्लोप्स इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर में स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बस इतना ही पढ़ना जो मैंने कंसेप्ट सिखाया. नाउ आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम. ठीक है, एक बार फिर भी लिख लो तुम लोग.
सबसे पहले ये लिख लो। ये हो गया एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस। अगेन एक्सरसाइज इजी है बिकॉज ऑलरेडी तुमने स्टडी किया हुआ है, बस थोड़ा सा उसको ब्रश अप करना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 5.2। Find the slope of each of the following line which passes or which pass through the point. The first दिया है 2, -1 and 4, 3. First का A. Here you have a line जो दो पॉइंट से पास होता है. I'll assume as A and B. A का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है 4, 3. And I want to find the slope of this line. So we'll use the first formula. So here we'll write the slope of a line is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. यहाँ पे मैंने अज्यूम नहीं किया कि कौन x1 y1 कौन x2 y2. यू कैन टेक एनी वेज, हाँ कोई भी ले सकते हैं. तो y2 minus y1 upon x2 minus x1. Suppose b is my y1 x1, sorry, a is my x1 y1 alphabetically and b is my x2 y2. So it is 3 minus -1. पहले y का डिफरेंस ऊपर, ठीक है. 3 माइनस माइनस और नीचे x का डिफरेंस 4 -2, which is 3 plus 1, 4, 4 minus 2 is 2, 2 ones are 2 twos are. तो फर्स्ट a का स्लोप ऑफ अ लाइन इज व्हाट, 2. ठीक है. सिमिलरली बी सी डी सेम वे में, और इससे प्रैक्टिस नहीं करेंगे सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा बिकॉज इट इज द सेम इजी क्वेश्चन से. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन. बिफोर स्टार्टिंग सेकंड क्वेश्चन एक छोटा सा और कंसेप्ट है, इंटरसेप्ट. व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट, इंटरसेक्ट पता है ना. इंटरसेक्ट मतलब दो लाइन दूसरे को जहां पे कट करती, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो इंटरसेप्ट में क्या होता है, लाइन कट्स द एक्सिस, लाइन कट्स द एक्सिस. यहाँ पे मैं दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए. वी हैव टू लाइन, वन इज लाइक दिस एंड द अदर इज लाइक दिस. ठीक है. समझो पॉइंट दिया है 1 2, 1 2 3. यहाँ पे भी 1 एंड 2, 1 2 3 4. बट दिस इज ऑन द नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस के, तो इट विल बी नेगेटिव साइन. ठीक है. सो व्हाट यू कैन सी हियर, जो तुम्हारी लाइन है ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है. एक्स एक्सिस को पॉइंट पे कट कर रही है तो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस 2 है, और वाई एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस और यूनिट 3 यूनिट है.
तो जब भी लाइन एक्सिस को कट करती है, अगर दोनों एक्सिस को कट करेगी तो इसके पास दोनों इंटरसेप्ट रहेंगे. दिस इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट and this is called as y-intercept. If the line cuts the axis x and y both, so it will have x-intercept as well as y-intercept. तो x एक्सिस को कितने डिस्टेंस और कितने यूनिट पे कट कर रही है? 2 यूनिट्स. ओरिजिन से काउंट करना, ओरिजिन से 2 यूनिट. इट विल बी x इंटरसेप्ट विल बी 2. अगर y एक्सिस को कितने यूनिट पे काउंट कर रही कट कर रही है? 3 यूनिट. तो द y इंटरसेप्ट इज 3. सेम वे यहाँ पे देखा जाए तो y एक्सिस को 2 यूनिट, ओरिजिन से 2 यूनिट अवे, और एक्सिस एक्सिस का ओरिजिन से 4 यूनिट अवे, बट इट इज ऑन नेगेटिव साइड और इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव. इट इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज मेजर कि वो ओरिजिन से कितना दूर है. इवन राइट लेफ्ट, राइट साइड रहेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड रहेगा तो नेगेटिव. यहाँ पे मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव 2 है, और जो मेरा x इंटरसेप्ट है दिस इज -4. तो इंटरसेप्ट कभी भी है, इसका मतलब दैट लाइन कट्स द एक्सिस. या तो x को कट करेगी, या तो y को, या तो दोनों को. ठीक है. अब समझो अगर x इंटरसेप्ट 2 दिया है, इसका मतलब लाइन x एक्सिस को पॉइंट 2 पे कट करी है, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? इट विल बी 2, 0. समझो लाइन x एक्सिस को -4 पे कट कर रही है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? इट विल बी -4, 0. इसका मतलब अगर तुम्हारे पास x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो पॉइंट विल बी x, 0. तो अगर x इंटरसेप्ट दिया मतलब वो लाइन कहाँ पे कट करेगी? x, 0 पे कट करेगी. सिमिलरली अगर y इंटरसेप्ट दिया है मतलब तो लाइन y को कट करेगी, किस पॉइंट पे कट करेगी वो निकालना है. तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3 पे कट करेगी, y इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ तो पॉइंट विल बी 0, 3. यहाँ पे 2 पे कट कर रहा है तो यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा? इट विल बी 0, 2. ठीक है. दिस इज द कंसेप्ट, मतलब वी कैन इजीली गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्सिस. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर x इंटरसेप्ट लाइन का दिया हुआ है, I'll take it as a, तो इसका मतलब लाइन एक्सिस को एक्सिस किस पॉइंट पे कट करेगी? इट इज a, 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट मतलब x की वैल्यू दी है तो y विल बी 0. इन केस अगर y इंटरसेप्ट दिया रहेगा which is b, तो the line cuts the y axis at which point it will be 0, b. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. If the x and y intercept of a line L are 2 and 3 respectively, then find the slope of a line. तो यहाँ पे x and y intercept दिया है. x intercept is equal to 2, y intercept is equal to 3. इसका मतलब वो पॉइंट जो x एक्सिस को कट करेगा, किस पॉइंट पे कट करेगा? इट विल बी 2, 0. एंड अगर y इंटरसेप्ट 3 दिया तो दैट लाइन विल कट्स द y एक्सिस at 0, 3. We need to find the slope of a line. Slope of a line, again the same formula. Write down the formula: y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is 3 minus 0 upon 0 minus 2. 3 and minus 2, or else minus 3 by 2. Okay, so here in question number 5th, both the intercept, x intercept as well as y intercept, both are 3. The x intercept is 3 and y intercept is also 3. Find the inclination, means I want to find the angle made with the x axis. तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले इंटरसेप्ट को विल कन्वर्ट इन कोऑर्डिनेट. तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? इट विल बी 3, 0. व्हाट विल बी दिस कोऑर्डिनेट? 0, 3. तो अगर x इंटरसेप्ट 3 दिया है, सो द पॉइंट इज 3, 0. y इंटरसेप्ट 3 दिया है,
The point is 0,3. Now we'll calculate the slope of a line first. And इस बार पॉइंट दिया तो we'll use y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon 3 minus 0 upon 0 minus 3. 3 upon minus 3 will get cancelled. This is minus 1. The slope of a line we got as what? Minus 1. बट मुझे स्लोप नहीं निकालना, मुझे एक्चुअली इंक्लिनेशन मींस थीटा निकालना है. फाइंड द इंक्लिनेशन मतलब मुझे एंगल चाहिए थीटा. तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे. नाउ विल राइट स्लोप ऑफ लाइन का वन मोर फॉर्मूला है विच इज tan थीटा, जिसमें तुम्हें एंगल आता है. स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू tan थीटा. अब ध्यान से सुनो, स्लोप ऑफ अ लाइन ऑलरेडी मैंने निकाला विच इज -1, तो आई विल राइट -1 इज इक्वल टू tan थीटा. तो नाउ विद दिस इक्वेशन आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ थीटा. एंगल निकालना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है. माइनस को बाहर 1, कौन सा एंगल की वैल्यू 1 होती है tan में? 45. तो tan 45 इज माई tan थीटा. माइनस बाहर ही रखने दिया, 1 मतलब tan 45. अब tan के आगे जो माइनस उसको अंदर ले लो, मतलब इट विल बी व्हाट, tan ऑफ -45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा. मतलब माइनस बाहर ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं. अब दोनों साइड tan एंड tan है, सिंपल, दे विल गेट कैंसल. बट कैंसिल मत करना, ठीक है, सिर्फ इक्वेट करना है. तो अगर मैं इक्वेट करूँ तो थीटा जो अंदर की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी? -45. तो इसका मतलब इंक्लिनेशन तुम्हारे पास क्या रहेगा? -45 डिग्री. एंड ये भी याद रखो कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. नेगेटिव तब आता है जब हम लोग बेसिकली एक्स एक्सिस के अपोजिट काउंट करते हैं. जनरली अगर हम लोग जो काउंट करते हैं वो हम लोग इस वे में काउंट करते हैं विच इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस. लेकिन इफ यू आर मेकिंग एंगल क्लॉकवाइज सेंस तो वी मेजर नेगेटिव, मतलब जो भी आंसर लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे. और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में इट इज पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे राइट एंगल प्रूफ करना है कि ए बी सी राइट एंगल है, और विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है. तो सपोज अगर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें बी 90 डिग्री है, तो अगर मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो अगर ये प्रूफ करना तो आई हैव टू जस्ट शो दैट कि ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है. और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि ए बी का स्लोप विच इज m1 एंड बी सी का स्लोप विच इज m2. परपेंडिकुलर मतलब दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है. व्हाट इट विल बी? -1. तो अगर मैंने इतना भी शो कर दिया देन इट इज सफिशिएंट कि मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में बस तुम्हें एक एंगल 90 बताना है, और 90 का मतलब होता है कि वो दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है. अब परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है स्लोप में? m1 इंटू m2 इज -1. तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं. विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स a b एंड c आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो अभी मुझे ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे वो राइट एंगल है, ए पे है कि बी पे है कि सी पे है, क्योंकि जिस पॉइंट पे रहेगा उसके एडजेसेंट साइड का स्लोप निकालना पड़ेगा. तो फिलहाल टाइम बिंग में तीनों का निकालूंगा, ए बी का भी स्लोप निकाल रहा हूँ, बी सी का भी स्लोप निकालूंगा, और ए सी का भी स्लोप निकालूंगा. आई एम कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ ऑल द थ्री साइड्स. और फिर चेक करूंगा किसका प्रोडक्ट -1 होता है. सिक्स क्वेश्चन में वी हैव ए 4,4, बी 3,5 and C -1,1 -1. So I will calculate the slope of each line or each side. The slope of side AB, then I will calculate slope of side BC, then I will calculate slope of side AC. तीनों का स्लोप निकालेंगे. स्लोप ऑफ साइड ए बी का स्लोप इट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. तीनों में सेम फॉर्मेट्स करेंगे.
नाउ सबसे पहले वी आर डूइंग फॉर ए बी, तो y का डिफरेंस ऊपर है और x का डिफरेंस नीचे। इट इज 5 minus 4 upon 4 minus 3. 5 minus 4 is 1, 4 minus 3 is 1, the answer is 1। तो ए बी का स्लोप आया 1। बी सी का सेम फॉर्मूला, y2 minus y1 upon x2 minus x1, so we'll write directly -1 minus 5 upon -1 minus 3, -6 upon -4, 3 upon 2। Now we'll calculate slope of AC. It is AC -1 minus 4 upon -1 minus 4. This is -5 upon -5. Will get cancelled. The answer is 1। ठीक है, अब इसमें चेक करना है किन दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने में -1 हो रहा है। इट इज ए बी एंड ए सी। सो हियर विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप slope of AB into slope of AC. Slope of AB is -1, slope of AC is 1। -1 into 1 which is -1 only। तो मतलब इन दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो रहा है। तो इसका मतलब विद द कंडीशन वी नो दैट अगर दो स्लोप m1 into m2 -1 हो रहा है, इसका मतलब वो दो लाइन परपेंडिकुलर है। वी कैन से दैट AB is perpendicular to AC। AB is perpendicular to AC। और याद रखो कोई भी ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर हो गया तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कर दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसके थ्रू किया? थ्रू स्लोप। तो मैं तीनों साइड का स्लोप निकाला एंड देन एंड में फॉर्मूला है स्लोप में m1 into m2 -1। इफ दिस कंडीशन इज वेरीफाइड, so we can say that lines are perpendicular and the triangle will be a right angle triangle। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। Find the slope of a line which makes angle of 45 degree। Which makes angle of 45 degree with the positive direction of y axis। ये मेरा y axis है और ये मेरा x axis है। Find the slope of a line which makes an angle of 45 degree with positive direction of y axis measured clockwise। Measured clockwise। तो तुम्हारे पास ये y axis है, तो एंड दिस इज y axis मतलब पॉजिटिव एक्सिस। ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ तुम्हें लाइन बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इस साइड भी बन सकता है एंड 45 डिग्री इस साइड भी बन सकता है, दोनों साइड। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 45 डिग्री फॉर्म करना वो y एक्सिस के साथ मेजर करना है विच इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब हाउ द क्लॉक मूव, इट इज मूविंग लाइक दिस, मतलब ऐसा मूव करना है। तो y एक्सिस के साथ 45 डिग्री लाइक दिस ये होना चाहिए। अगर ये काउंट करूंगा तो उल्टा हो गया ना, मतलब इट इज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये नहीं काउंट करना है। मतलब मुझे दोनों में से कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है? ये वाली, बिकॉज वो लाइन, ये लाइन, जो ये लाइन है y एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज मेजर होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक इज मूविंग लाइक दिस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला था मतलब इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसा, तो फिर मैं ये सेकंड लाइन को चूज करता, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगी बट एंटी क्लॉकवाइज, बट आई वांट क्लॉकवाइज इस साइड। इट इज मूविंग लाइक दिस, डायरेक्शन ऑफ वॉच, जो मिनट हैंड आर हैंड है ना, इट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों इरेज करना पड़ेगा, मतलब ये भी और ये भी।
मतलब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है विच इज मेकिंग 45 डिग्री विथ वाई एक्सिस। बट एक्चुअली रूल ये है कि जो एंगल तुम्हें पता होना चाहिए जिस लाइन का भी स्लोप निकालना है उसका विथ एक्स एक्सिस पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर ये 45 डिग्री है और पूरा 90 होता, दिस होल इज 90, अपर पार्ट 45 है, तो बेसिकली द लोअर पार्ट मतलब द लाइन विल मेक्स एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 45, इज 45। अगर ऊपर 45 है तो नीचे भी 45 रहेगा ताकि एडिशन 90 हो जाए। इसका मतलब लाइन का मुझे इंक्लिनेशन मिल गया, दैट इज थीटा मिल गया फाइनली। तो यहाँ पे आई विल राइट लाइन मेक्स एंगल of 45 degree with positive y-axis measured clockwise, measured clockwise। ठीक है, अब उसी रंग का एंगल तो 45 दिया बट विथ y axis, therefore inclination made by the line with x axis, inclination made by the line with x axis। तो टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 90 माइनस 45 इज 45। ठीक है, पूरे 90 में से 45 वाई का मेजर लेस कर देंगे तो एक्स का एंगल मिल जाएगा 40। नाउ यू नो द एंगल तो वी कैन इजीली गेट द स्लोप। तो हियर विल राइट द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज tan थीटा, क्योंकि एंगल दिया है tan 45 एंड tan 45 इज 1, तो मतलब इस लाइन का स्लोप 1 है। इन केस, इन केस अगर तुम्हारे पास समझो कि एंगल चेंज होता, मतलब सेम एंगल 45 डिग्री नहीं बल्कि इस बार गिवन एज 30 डिग्री होता, लाइन is making angle 30 degree with the positive direction of phi axis measured clockwise, सब कुछ सेम होता बस एंगल 30 होता। तो अगर ये एंगल 30 है बट मुझे एंगल चाहिए विथ एक्स एक्सिस चाहिए, मतलब ये एंगल तो पूरा 90 रहेगा। तो अगर ये 30 है तो डेफिनेटली दिस पार्ट इज द रिमेनिंग ऑफ दैट 90, मतलब 60 डिग्री। तो उस केस में तुम्हारा एंगल क्या रहेगा 60 डिग्री, एंड फिर tan 60 करके विल कैलकुलेट द स्लोप। तो y के साथ जो भी एंगल फॉर्म हुआ है अगर तुम्हें x के साथ निकालना तो हमेशा एंगल को 90 में से लेस करना रहेगा। ठीक है,